Hello students, welcome back. Welcome back to the module. Chalo, let's begin with a quote that great things never come from the comfort zones. So basically, if you want to have great things in your life to be happen, then you will have to, come out of your so-called comfort zone. I'm writing in, this like large lecture, large like बड़ी spelling लिख रही हूँ मैं because these comfort zones are like they are the hurdles, so please come out from your comfort zones if you actually want to acquire something in your life. Okay, chalo, let's begin. So let's begin with the 10th principle of the FIOL. Okay, we have done the 9 in our previous lectures, and here the 10th lecture is this is I guess the 12th lecture, or yeah, this is the last one, and we are gonna complete this chapter, and then I will be giving you the practice sets. Okay, and practice sets, please miss mat karna, they are very important. Okay, chalo, let's begin with the order. So fuel ka ye कहना है that people and materials must be in suitable places at the appropriate time. See, order का मतलब होता है it should be in order. Either it's human resources, okay, या फिर आपका कोई भी मटेरियल हो, या आप मतलब everything should be in sync. That is the basic meaning of order. It should be in sync, it should be in proper, it should be at proper place, okay, for getting the maximum efficiency. अगर आपको maximum efficiency चाहिए तो everything should be at the right place. The principle of order states that a place for everything or everyone, and everyone in its her or his place. See, this this sentence is like quite typical कि क्या लिखा हुआ है everything everyone, but इसका basic सा फंडा यही है कि आपका जो भी principle है it should be in order where just suppose जो मतलब A should be at A place, okay, that should be that can't be at B place. जैसे कि A B के बाद ही आता है, sorry, A B के पहले ही आता है, तो it should be in this chronology. Okay, similarly it मतलब there should be some maintained order. Okay, एक पूरा order maintained होना चाहिए चीजों का कि this will be placed like this thing, and all and so on and so forth. So that is how it should be work. So essentially it means orderliness. Basically इसका मतलब भी यही है, चीजें एक फिक्स प्लेस पे होनी चाहिए. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, कैसे भी तरीके के रिसोर्सेज हो, इट शुड बी इन in its place, in its actual place, in its reliable place. Okay, so that should be there. All right, so there will be no hindrance in the activities of business factory. So कोई भी problem नहीं होगा, कोई भी grievance नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि यार कैसे मैनेज करें, क्या करें ये वो. So it will be very easy to maintain. And sometimes ऐसा होता है ना कि इतना chaos रहता है जगह पे that we doesn't even know कहाँ क्या रखा हुआ है, we can't even feel. So it should not be like that. Oh, basically इसका इतना ही meaning है. Okay, to increase the productivity. Okay, similarly to increase the efficiency, ये बहुत important है कि चीजें जो हैं वो अपने order में रहनी चाहिए. Alright, next is stability of personnel. See, इसका हम मतलब ये बहुत बार बोला गया है that employees का जो turnover है वो minimize होना efficiency. तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के हिसाब से टर्नओवर बैठा हुआ होना चाहिए एम्प्लॉइज का. ओके, सो फ्यूल का ये कहना है पर्सनल का जो भी कोई भी पर्सन है, अगर आप एज एन एम्प्लॉय उनको सेलेक्ट करते हैं तो ही और शी शुड गो थ्रू अ वेरी रिजिड प्रोसेस. बहुत अच्छी मतलब प्रॉपर तरीके की प्रोसेस होनी चाहिए टू गो थ्रू दैट, so that whenever you will appoint someone, whenever you will start doing recruitment or something like that,
तो you have to go through that person to a rigid process where it can be like बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने resumes जो होते हैं वो भेजते हैं, फिर वो शॉर्टलिस्टेड होता है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद में कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है, और बाद में कुछ टाइम के लिए आपको रखा जाता है, एंड देन दे विल डिसाइड दैट यू आर ओके विद दैट और नॉट, ठीक है। तो ये एक रिजिड प्रोसेस होता है, तो वो गुजरना जरूरी है। बट अगर जब एक बार सेलेक्ट हो जाएं, जब यू हैव सेलेक्टेड वंस कि चलो दिस पर्सन, सपोज ए हैज सेलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर जॉब, ओके, XYZ जॉब, तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वी शुड गिव टाइम, वी शुड गिव टाइम टू दैट पर्सन कि टू प्रूव हिमसेल्फ, टू गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स देने के लिए, अच्छे ओवरकम्स देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको टाइम दें, उनको एक तरह की स्टेबिलिटी दें कि चलो वी आर गिविंग द स्टेबिलिटी टू यू, कि आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, जितना भी व्हाटएवर, तो इतने टाइम में यू हैव टू डील विद these थिंग्स एंड वी आर गिविंग यू टाइम, टिल देन वी विल नॉट जज, ओके, मतलब जज ऑन द ओवरऑल बेसिस एटलीस्ट कि ओके इससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो somebody should give that time to that person, okay, that is the important thing। तो वो स्टेबिलिटी देना, अब वो स्टेबिलिटी आप कैसे भी दे सकते हैं, एक ड्यूरेशन सेट कर लीजिए कि चलो इस ड्यूरेशन में एक ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपने काम करना है, तो इतने में अगर आप काम करके अच्छा रिजल्ट दिखा देंगे तो योर जॉब विल बी फिक्स्ड, ओके। तो उस बीच में यू डोंट नीड टू इंटरफेयर, ठीक है। तो वो इंटरफेरेंस वाला फैक्टर जब नहीं आएगा, then employee will work accordingly and it will come to the productivity thing। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज you are interrupting so much, आप काम के बीच में आप एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि देयर इज लाइक अनस्टेबिलिटी, बहुत अनस्टेबिलिटी है, वी आर नॉट एबल टू वर्क, या फिर हमें निकाल दिया जाएगा, एक तरह की इनसिक्योरिटी आ गई एम्प्लॉय के मन में कि नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग, दे आर इंटरफेयरिंग सो मच, प्रोबेबली आई एम नॉट डूइंग गुड और समथिंग लाइक दैट। तो इन कारण से एम्प्लॉय जो है वो खुद ही पहले ही क्विट कर देंगे, ठीक है, तो वो छोड़ देंगे अपनी जॉब, बिकॉज ये इनसिक्योरिटीज आर वेरी वेरी हिलेरियस समटाइम्स। तो ये वो एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा एम्प्लॉय को, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस है। इससे क्या होगा कि और मतलब अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपने जो रिक्रूटमेंट में या सिलेक्शन में या ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगाई है विच इज एक्चुअली वेरी हाई, तो वो सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने इतने मुश्किल से तो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। अगर उनमें से ही लोग जा रहे हैं, if they are not able to perform well and you are not able to give them stability in their job, then they will leave, and when they will leave you will have to you will have to bear that cost which is actually very high। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एक तरह से बहुत बहुत लॉस है। तो एक अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए, एक अच्छे बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव the stability, and it is given by the FIOL, and it is the principle where the employee should have that stability by the organization। See, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें ये करना है, हमें वो करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें डिसिप्लिन रखना है, एक ऑर्डर से परफॉर्म करना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन expect from their employees, but the employees also expect, and the organization have to give them back some things so that वो stability, वो coordination बिल्कुल अच्छे से बना रहे। All right, next, initiative। This is not imitative, it is initiative, okay, let me just correct it। Yes, the initiative। So workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। वर्कर्स को खुद को एक तरह का एनकरेजमेंट लाना चाहिए, डेवलपमेंट लाना चाहिए, ताकि वो खुद के प्लान्स जो हैं वो बाहर ला सके। खुद के प्लान्स जो कुछ भी किसी इम्प्रूवमेंट के लिए, या उनका कोई सजेशन है
है ना, इधर इट्स इम्प्रूवमेंट और सजेशन, कोई तरह की एडवाइस आप देना चाहते हैं, तो दे शुड कम आउट एंड टॉक अबाउट दैट थिंग, दे शुड टेक द इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का मतलब फियोल के क्या कहना है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनिशिएटिव मीन्स द टेकिंग the first step with self motivation. Okay, it is like the first step for the self motivation. अगर आप self motivated हैं या आप self motivation चाहते हैं, तो you will have to take the initiative. Initiative का मतलब ही हिंदी में होता है पहल करना। पहल करना मतलब initiate करना। So अगर आपको ऐसा if you want to take that first take initiative, तो that will be a sign of self motivation कि आप self मतलब you are self motivated, आपको किसी की जरूरत नहीं है, and you are come out with your plan, with your any suggestion or something like that. Okay, so it is like thinking out and executing the plan. See, basically what is it, आप सोच रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं उसको बाहर लेके आना, जैसे कि मतलब you feel that this is not right or this should be changed, और this should be this can be flexible, और आप किसी में भी आपको कोई तरीके का भी अगर आपको सजेशन देना है, तो you should be come out with the executive plan. एक executing plan आप सोचकर आ सकते हैं बाहर. You can think in other way, and according to Fiol, and it is in general, it is one of the trait of an intelligent person. If I can give you example teacher का, ठीक है, if teacher is leading some एक टीम, ठीक है, अपने क्लास आपका जो क्लास टीचर है वो एक आपकी क्लास को लीड कर रहा है इन सम प्रोजेक्ट और समथिंग, इफ एनी वन ऑफ स्टूडेंट come and tell teacher that I want to help you and I have a short plan or I have a suggestion, ma'am, can you please take it? So any teacher, or I will not tell generally, but if I will be there, then I will be the happiest person on that, on that day when any student come to me and tell me that, ma'am, I have plan, I have suggestion, may I help you, or something like that. That teacher का ego is different कि अच्छा ये मुझे सिखाएगा, वो वाला अलग है, that इसको please keep that aside and think in this way. And I will think that that student is intelligent, he has that power to initiate things. So that will be very good, and it will be a sign of encouragement, and it will be it will give a very good sign of a person. And अगर ऐसे लोग, अगर 4-5 लोग भी अगर मिल जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, तो ऐसा लगता है कि भाई वो खुद सोच के चल रहे हैं कि नहीं यार ये प्लान करेंगे तो ये गड़बड़ हो सकती है, तो हम इस तरह से ना करके किसी और तरीके से करें, तो टॉप मैनेजमेंट को या जो ओनर है उनको भी लगेगा कि ये अपनी कंपनी समझ के काम कर रहे हैं. सो बेसिकली ये वाला फंडा है, तो दैट इज व्हाट द इनिशिएटिव इज. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं उनको उनके अगेंस्ट जाएं, या फिर फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं है. किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जाना है, और इट शुड नॉट बी फेक कि करने के लिए कर रहे हैं लोग, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम कुछ कर देते हैं, वैसा वाला भेड़चाल वाला सिस्टम नहीं रखना है. बस आपको एक प्रोडक्टिव इनिशिएटिव लेना है जो कि फ्रूटफुल हो, और साथ ही इट कैन हेल्प दी अदर पर्सन इन अ गुड वे. नॉट लाइक कि भाई आप बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं मैनेजमेंट के, और जो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है उसमें पंचायती कर रहे हैं, मतलब पंचायती इज द वर्ड. ओके, सो वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बट it should be a initiative, it should be like a initiative only. All right. और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज, जो कि एम्प्लॉयज को एक सजेशन सिस्टम जैसा सिस्टम बनाकर रखती हैं. वो बड़ी कंपनियां जो होती हैं, अच्छी कंपनीज होती है, जहाँ पे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एम्प्लॉय को अपना अपना पार्टिसिपेशन देना है, अपना अपना सजेशन देना है. वी विल कंसिडर दैट. तो ये होता है एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट रिजल्ट इन अ गुड टास्क, इट रिजल्ट इन अ गुड एंड प्रोडक्टिव आउटकम. इट गिव्स अ गुड आउटकम. तो ये होता भी है, और मतलब होना भी चाहिए एक्चुअली. ओके, द लास्ट वन इज एज पर द कॉर्प्स
It is not aspirate, it is spirit the corps. Okay, so that is the thing. So management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees according to FIOL. सी मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ओनर हैं, जो मेकर्स हैं, दे शुड प्रमोट, दे शुड मतलब दे एक्चुअली मस्ट प्रमोट द टीम स्पिरिट. आपको एक टीम में काम करना है, यू नो, कड़ी से कड़ी जुड़ती है हमेशा, ठीक है. तो इफ पीपल आर वर्किंग लाइक दिस वे, इस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है, और इफ यू कैन फॉलो दीज एरोज, तो ये इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है. तो अगर ये इस तरीके से अगर ये काम करते हैं तो यू नो यू हैव टू हैव द टीम स्पिरिट फॉर श्योर, है ना. टीम स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर तो, कि एक टीम स्पिरिट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्या सीन बैठता है कि देखिए सिंपल सी बात है, जब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी और पीस की बहुत जरूरत है, ठीक है, एकदम शांति चाहिए, शांति से सारा काम होना चाहिए, स्पेशली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. तो यू हैव टू हैव दैट टीम स्पिरिट, दैट थिंक दैट यू नो ओके विल डू इट, वी हैव टू डू, एंड मतलब एंड ऑल, बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी. तो वो सब ऑलरेडी आपके दिमाग में होना चाहिए, और इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन. ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन वेयर यू विल प्रमोट द टीम वर्क एंड द टीम विल वर्क together. They will have that motivation that okay we have to do. Okay, especially in large organization बहुत जरूरी है, और ऐसा बहुत होता भी है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं टीम स्पिरिट के. क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग काम कर रहे होते हैं, तुम रोज हर किसी एक इंडिविजुअल आदमी को उनका ऑब्जेक्टिव नहीं याद दिला सकते हो कि ओके दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू एंड दिस इज वेयर वी वांट टू गो. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा आपके दिमाग में तब रहेगा व्हेन यू विल हैव दैट टीम स्पिरिट. आपको पता होगा कि हमें एक टीम के साथ काम करना है, और हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू परफॉर्म इन दिस वे. तो ये जब होगा ना, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी आपके, और टीम स्पिरिट होगी तो बाय डिफॉल्ट शांति तो रहेगी ही रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में. तो जहां लॉस, अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ज्यादा लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का. सी, अगर बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक मतलब बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस. तो एक कोई भी डिपार्टमेंट है, सपोज आप ले लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है. ओके, दिस इज फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड हियर दीज पीपल आर वर्किंग. ओके, सो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर के, जो भी मैनेजर है जिसको फाइनेंस मेंटेन करना है, और जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो अकाउंटेंट एक्चुअली है, जो सारे अकाउंट वगैरह देखता है, ऑडिट वगैरह करता है, इन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हाउ विल यू बैलेंस द फाइनेंस? How will you manage finance? How will you come with the efficient cost? कैसे आप एक अच्छी कॉस्ट निकाल पाएंगे कि ओके हम इस तरीके से मतलब चीजें कवर करेंगे और दिस इज द कॉस्ट. सपोज फाइनेंस मैनेजर बोलेगा कि हमें कॉस्ट ध्यान नहीं देनी है, मतलब मैनेजर इज नॉट डूइंग परफेक्टली, और जो सीए साहब है हमारे, ही इज लाइक कि नहीं, आई विल बी वेरी लॉयल, आई वांट टू डू दैट. तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेट लॉस ही होने वाला है, ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी कमी होने वाली है. तो एक ये बहुत अच्छी लाइन बोली है जो कि हर जगह लागू होती है, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद मी इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस विद वर्कर्स. ये आप कीवर्ड समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको हर प्रिंसिपल के मैंने कीवर्ड बताए हैं, तो राइट this is as a keyword because it should be like that. See, when I say I'm not gonna give you 12th ka exam, right? I'm not gonna give you, but I always say that we will get the highest marks, we will in the list of the toppers, and we will acquire what we want to acquire. I am telling you on the behalf of you so that you can feel I am with you, right? You're getting my point. So this is the team spirit we want, and this is the team spirit which will gradually work after some time. All right, so that is there.
सो एक स्पिरिट बन जाएगी अगर आप टीम वर्क रखेंगे, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट की स्पिरिट बन जाएगी. यू विल बिलोंग टू सम टीम मेंबर्स, so you will have that belongingness कि okay, I am belonging to this team and this is my team, and we have no trust issues, we have mutual trust. तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती है. इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज एंड ऑल दिस थिंग्स. आप में टीम वर्क रहेगा, आपको टीम वर्क असाइन करेगी और उस हिसाब से आप काम करेंगे, तो कोई तरह की पेनल्टी का या और भी बहुत सी चीजें हैं जो कम हो जाएंगी. पेनल्टीज हो गई, या फिर आप में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे. इस तरीके से आप हार्मोनी एक्वायर कर पाएंगे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट इज. अभी टेलर और फियोल के प्रिंसिपल्स का कंपैरिजन है. सो लेट्स डिस्कस. इट इज इन शॉर्ट. सो इफ यू सी, इट इज थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, बट दोनों सेम ही है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाएंगे. हेनरी फियोल का पर्सपेक्टिव जो है वो टोटल लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए. ठीक है, कैसे आप उनको अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं. फिर हेनरी फियोल का ये कहना है कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे ध्यान दो भाई. ठीक है. फिर टेलर का कहना है कि ओके, फ्लोर लेवल ऑफ शॉप लेवल, फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, उन पे ध्यान देने का उनका पर्सपेक्टिव है कि उनको ध्यान में रखते हुए, सब लाइक लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए ही हैज मेक द प्लान्स. यूनिटी ऑफ कमांड जो है, इट इज लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट, जहां पे उन्होंने बोला है कि यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट जस्ट मिस दिस कंसेप्ट एंड यूनिटी ऑफ कमांड इट एनीवेयर. ओके, वेयरएज फियोल जी ने बोला है, टेलर जी ने बोला है कि डिड नॉट फील इम्पोर्टेंट एज शोन थ्रू फंक्शनल फॉर्मैनशिप. ठीक है, उन्होंने बोला कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप बताया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल एंड इट कैन बी अकर इन एनीवन. सो एप्लीकेबिलिटी बोला है, तो हेनरी फियोल ने बोला कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मेरे सारे प्रिंसिपल जहां पर भी हो, दे आर एप्लीकेबल. देयर इज नो पॉइंट कि कुछ दिक्कत हो, तो दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. और टेलर ने बोला है कि इट इज एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस. ओके, तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस होगी तब मेरा वाला जो है वो एप्लीकेबल होगा. देन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मतलब पर्सनल इंपॉर्टेंस पे ज्यादा ध्यान दिया है हेनरी फियोल जी ने. और वेयर एज लाइक टेलर हैज सेड दैट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, मतलब ही फील्स दैट किसी भी कुछ भी फॉर्म करने का जो बेसिस होता है वो यही होता है कि इफ यू experiment that or you observe that, so that is how you can form something. And Fiol ne as I said, उन्होंने बोला है कि if you experience some things then you can just form anything. Alright, फोकस किया है हेनरी फियोल ने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए. ओके, वेयर एज टेलर हैज सेड दैट प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए उस पर ध्यान दिया है उन्होंने. देन पर्सनैलिटी, Henry Fiol was a practitioner, okay, and Taylor was a scientist. Okay, expression, उन्होंने एक जनरल थ्योरी बताई है हेनरी फियोल ने एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जनरल थ्योरीज ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, वेयर एज टेलर ने बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बहुत फोकस किया है. इवन साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिस पे उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, एज यू हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर्स. उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट पे प्रिंसिपल बनाया, दैट रूल ऑफ थंब, एंड देयर आर सो मेनी. ओके, तो टेलर का ये कहना है, एंड फियोल जी जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जनरल थ्योरी उठाई है अपने प्रिंसिपल्स पे, और वो उन्हीं पे उन्होंने चीजों को एक्सप्रेस करा है. सो दैट इज व्हाट इट इज, एंड यू कैन लर्न. बहुत इजी है, आपने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं तो यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट दैट. दोनों के प्रिंसिपल बहुत अलग अलग हैं एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू कांट इवन अफोर्ड टू मिस एनीथिंग इन बिटवीन दैट. ऑलराइट, सो डोंट इवन थिंक टू मिस. ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स हो गए. अभी एक और थोड़ा सा देख लेते हैं फियोल वर्सेस टेलर में. डेफिनेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट की फियोल ने बोली है दैट दोज प्रिंसिपल्स वो कंसिडर द वर्क फ्लोज एंड ऑपरेट एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस आर फियोल प्रिंसिपल. वो प्रिंसिपल जो ये वो प्रिंसिपल होने हैं फियोल के
जो कि कंसिडर कोई भी वर्क फ्लो में एक एफिशिएंसी लाते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं, दैट आर फियोल के प्रिंसिपल्स। वेयर एज ये इधर होना चाहिए, तो होना चाहिए, यस ओके। तो टेलर ने बोला है कि टेलर के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि एक स्टाइल किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए अडॉप्ट करते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट। ओके, तो ये बेसिक मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट यू टू राइट इन योर शॉर्ट नोटबुक, इट इज ऑल ओके। ओके, यस, देन टेलर ने जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप किया है। हेनरी फियोल जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है। हेनरी फियोल जी ने टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया, एज वी हैव स्टडीड। देन टेलर हैज फोकस्ड ऑन द लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनका डायरेक्शन मैनेजरियल फंक्शन पे बहुत ज्यादा था, वेयर एज टेलर हैज direct the production and the engineering process. Okay, where applicability, as we studied, कि universal है उनके principles की applicability Henry Fayol की, where there are some specialized organization जहाँ पे ये help कर सकते हैं। Then remuneration का method जो है sharing of profit with managers, फियोल के हिसाब से कि आपने जो प्रॉफिट अटेन किया है उन हिसाब से मैनेजर्स में बांट दो, सिंपल। मतलब उस हिसाब से देखो और उस हिसाब से सैलरी डिसाइड करो। देन बहुत सारे अलग अलग पेमेंट मेथड दिए हैं टेलर ने, विच इज नॉट इन योर कोर्स एक्चुअली, तो यू विल बी रीडिंग इन द हायर क्लासेस। देन अप्रोच, मैनेजरियल अप्रोच रखी है उन्होंने, मैनेजर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखी है टेलर साहब ने, और फियोल सामने एक मैनेजरियल अप्रोच रखी है। मेन एक्टिविटीज फियोल की जो है वो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, वेयर एज टेलर कंसंट्रेटेड ऑन वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी। Okay, they both are different, their principles are completely different, but all I need to tell you is that focus on the both of the principles. They are very important, दोनों ही बहुत ही ज्यादा important है, and I am telling you one question will be created from this thing only. Okay, it has been asked so many times, so don't even forget. All right, so I'll be seeing you in the next class, which is the practice test. Okay, and they are very important. Do not miss practice sets, and please go and write down about the things, write down about the answers, and if you have any queries, then we will be conducted sessions, so then you can ask me. Okay, you can just jot down on your notebook and you can ask me later. All right, thank you so much. Bye bye.